First of all, this is my name, Pratik Gupta, okay, and I am being part of Vision IS for the last 1.5 years, and I'm taking economics portion here, okay, and I did my masters from Delhi School of Economics, then IAS preparation, and then this coaching thing. Basically, in economics, like the portion of economics in the ICE examination is very crucial. For example, in the prelims examination, when it comes to asking number of questions, like last year, around 14 questions were asked in the prelims from economics section. Before that, it was 16. The maximum number of questions that was asked in the UPSC in GS economics was around 36 out of 100 questions in 2010. Sorry. There was a maximum number of questions they asked in 2010, 36 question out of 100. So the maximum weightage they provided that year only. I don't know why they were asking so many questions that year, but maybe it's upon the, you can say, the mood of the examiner, the person who is set in the paper. But all in all, you will get around 20% weightage for economics. Okay. When it comes to mains examination, the weightage is around you can say 135 to 150 marks. Like this year, the total number of questions were around 15, 16 something, and the total weightage was around 150 marks. So this year, you had question economics from in both paper 2 and paper 3. Majority question you will get in paper 3 only. The students are being very much afraid about the economics section. Why they are being afraid? Because economics is a section which is not static, it's changing every day. For example, you must have seen recently the government, the RBI recently, decreased the repo rate, and there are so many changes in the monetary policy. So when it comes to understanding this thing, if you're knowing the repo rate concept, then doesn't mean that you have actually done everything. The point is you also need to know the concept and the forces behind which force the RBI to change it. You get my point or not? So basically, in case of economic section, that once you understand the concept, you have to connect things with the recent things which are going on. For example, in case of history, I'm not saying history is easy. In case of history, if you're reading that how the Akbar died, then you know that there are certain points are being there, which will be always static. It will never change. But in case of economics, the problem is if you're reading repo rate today, okay, and you see that repo rate is, let's suppose, it was 6.75% like few days back. Now it is 6.5%. Like when they decrease it, there has to be some reason. So last time when they decrease it from 7% to 6.75%, the reasons were different that time. Now they decrease it again, the reasons are different that time. So every time when you read such kind of things, you have to connect these things with the current updations. Okay, what actually being going on in the current scenario and why the RBI is decreasing it. Like some people think that when it comes to decreasing this repo rate and reverse repo rate and whatever rate it is, that RBI is having the complete authority to do that. No, it's not like that. Though when it comes to taking the final call to reduce this, it is of the RBI, but when it comes to taking the final decision, they have to consult with the Ministry of Finance also. Okay. So point is, economics is a subject which is very, very, kind of dynamic. I think it is the most dynamic subject. Like if you go by this topic of WTO, like in WTO, every year you will find the same thing, but as soon as they are having a meeting, like last time they had the Nairobi meeting, before that they were having what kind of meeting in the Bali round of negotiation. So every time they are introducing new things, the new things are being coming. What kind of points are being given by the various developed countries. So every time you will find the different things. Okay. So the point is, in economics, if you're not very much comfortable in terms of understanding concept, and you're not comfortable in terms of connecting these things with the current environment, then it will be very difficult for you to have a command over economics. And I'm telling you, in economics, it is the most easiest area where you can answer all the PT question. Like if you're asking 20 questions, it won't take more than 10 minutes to solve this question. Why? It is all conceptual. They will never ask you facts. They will never ask you facts. So if you know the concept, you just need to read the first line of the question. Then after that, as soon as you go through the option, you will be able to find out the right thing straight away. But point is, the command has to be there. And that you can build. How? Once you understand the concept, it should not be like that you should simply leave it. Try to, create examples regarding that. You get my point or not? Try to create examples regarding that. For example,
People are saying repo rate is a rate at which banks are borrowing from RBI. Okay. On the other hand, if I am saying bank rate is again a rate at which the banks are borrowing from RBI. The third thing you can say, in case of MSF, marginal standing facility, again it's a rate at which the banks are borrowing from RBI. Then what is the main difference between these three? You can say in bank rate it is for long term. In this case it is for 7 days, 14 days and 28 days. And in case of this MSF, it is for, you can say, overnight basis, that is maximum 24 hours. So the first major difference. So you can say the concept is same. Okay, it's just that the durations are different. Okay. Moreover, when you try to connect this thing, that why the RBI recently reduced the repo rate, then you should see what kind of liquidity situation the RBI wants in the short term or in long term. It's not like they have just reduced the repo rate, they've also reduced the bank rate also. They've also reduced the MSF. They also reduced the SLR by 0.25%. Because why? They want to inject more liquidity in the market. You get my point or not? So thing is, currently, that lot of changes are being going on. Moreover, as soon as you'll have the budget provided by the government of India, again you'll find a lot of changes. So some things are being there, which if you're not comfortable, then you will not be able to understand from the newspaper. But yes, certain topics are being static that you can easily read from the newspaper. For example, the topic of infrastructure, okay, that is kind of very much theoretical. The topic of agriculture, again kind of very much static. Okay, so these kind of topics you can simply update from your newspaper. But yes, when it comes to certain technical thing, try to have habit that whenever any major policy or anything is being announced by Government of India or by the RBI, go to the website, just download the document, and you're not supposed to read the entire document, just read first 2 or 3 pages. That will help you out in terms of understanding what they're actually trying to say. Like when it comes to reading the economics, other people are generally thinking that, that how to read the entire economics, it will be very difficult. If you do not want to read it, leave it. What you can do simply, when start reading the chapter, you must have, seen that certain lines are being given in, italic form, introduction kind of thing. Just read that particular thing. You'll have a broad idea what they actually want to say. And after that, at the end of the chapter, you're having conclusion. Okay, just read that. You'll have a broad, thinking that what they actually want to say. After reading this thing, if you're knowing the syllabus of the UPSC, try to see whether this thing is being as a part of my syllabus or not. If you think yes, it is a part of syllabus, then try to go through the chapter just very fastly. If you think that it is not required, simply leave the entire chapter, say okay, tata, bye bye. Point is, in this case, you need to know the syllabus. Because generally the problem the students are, they hardly bother to see the syllabus. See the syllabus, see the question paper, try to have a broad knowledge that what actually they are asking. And the UPSC syllabus have been designed in such a well manner that it's not like somebody, some people are saying that why the UPSC is asking history, geography, polity and the other thing. If you want to make someone bureaucrat, just simply you try to, you should simply teach them administration. No, it's not like that. Why they are forcing you to read everything? The reason behind this is, like suppose when you become DM and being posted as a, secretary of the archaeological department. Let's suppose, you're being posted as a part of any, defense department. So under that you need to have a, kind of a basic knowledge regarding this. Moreover, why you need to read geography? Because once you become DM, if you have the good knowledge about the basic knowledge about the conditions of area, topographic conditions and the other thing, then you will be able to take decisions in a much better manner. Okay, so it's not a UPSC just want to read you everything. They are preparing you to make a bureaucrat from the very first day. So once you're being familiar with everything, then you will be able to become a good bureaucrat. Okay. Moreover, when it comes to the way I am covering economics in this institute is that, like, you have to generally being told by various people that you have to follow this book, that book, and you have to follow so many sources. But in class, what I am doing, you just need to focus on the class note that you're discussing. Secondly, in addition to the printed notes provided by the institute, I am giving my own handouts. That handouts I prepared, from the various textbooks. Like you're having this IC Dhingra, Datan Sundaram, you're having various NCERT, Government of India website, budget document. Okay, so many things are being there.
So like you're not supposed to read everything from these books. Only few things are being required. For example, in the economic survey, out of the 400 pages this time, only 50 pages are good, which is which is required to be read by a civil service aspirant. So you're not supposed to read the entire one, just 50 pages. So what I did, simply took this 50 pages out and provided again from this 50 pages only those content as a part of notes that is actually required from the examination point of view. Okay. From the books like Dutt and Sundaram, the total number of pages are more than 1500, but only 100 pages are required, you can say, only 100 pages from our examination point of view. So thing is, in this examination, it is very important, to know what to read and what to leave. Yeah. How to recognize those? That you can recognize when you know the syllabus properly. What you can do, see the syllabus properly. Like जैसे होता नहीं है कि जब हम किसी टूर पे जाते हैं, हम कहीं घूमने जाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम पूरी प्लानिंग करते हैं, कहाँ जाना है, क्या रूट लेना है, कितना खर्चा करना है, सब कुछ प्लान करते नहीं करते हैं, सब कुछ अच्छे से प्लान करके जाते हैं। और अगर रास्ता नहीं पता तो जीपीएस पे लगाते हैं, जीपीएस पे लगा रहा है, उस पर बैठ के हमें पहुंचना है, पूरी प्लानिंग करके जाते हैं। इसी तरह इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग लाइक इन एनी एग्जामिनेशन, देन अगेन यू नीड टू नो अ रूट, कि उसका रूट क्या है मेरे पास, अगर आपको आईएएस बना तो आईएएस बनने का रूट क्या है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहली बात, अगर आपको ये नहीं पता होगा कि मुझे पढ़ना क्या है, तो आप ये कैसे जानेंगे, आप पहुँच कैसे पाएंगे। तो पहली बात, जब भी आप तैयारी शुरू करें किसी भी एग्जामिनेशन की, उसके सिलेबस को कम से कम 1 या 2 दिन दीजिए, सो दैट यू विल हैव ए ब्रॉड पिक्चर इन योर माइंड कि व्हाट आई नीड टू रीड टू पास दिस एग्जामिनेशन। आपको रट्टा नहीं मारना है टॉपिक्स का, आपको सिर्फ समझना है कि टॉपिक्स में दिया क्या गया, कहना क्या चाह रहा है। जब आपको वो पता लगेगा, सेकेंड चीज़ आपको करनी है कि आपको ये देखना है कि जो क्वेश्चन पेपर्स है लास्ट ईयर के, यू नॉट सपोज टू गो टू द लास्ट 10 ईयर्स पेपर, जस्ट 2 और 3 ईयर्स पेपर। ये देखिए कि क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका लेवल क्या है। जैसे मान लीजिए पॉवर्टी है, यू नो व्हाट इज पॉवर्टी, द वन हु इज नॉट एबल टू अफोर्ड द बेसिक थिंग्स इन लाइफ। ओके, बट पॉइंट इज, in UPSC, in the paper you will find that in prelims examination they are asking various schemes, that they are giving the name of the scheme, 2 or 3 points, they are asking choose the right code. In the mains examination they are asking questions like that poverty has been defined by Planning Commission in India, but there is a lot of controversy regarding this, give your own opinion. So under that they need to have your own opinion regarding one particular estimation of the government of India. Okay, so once you see the topic that the poverty is a part of my syllabus, so it doesn't mean you just need to know the definition of poverty. When you see the question, you will be able to know that they want me to read these kind of things. So once you start preparing that particular topic, you will be able to have a picture in your mind that what I need to read regarding this particular thing. Okay, so syllabus is very, very important that you need to keep in mind. Like if I'll ask you a simple question that do you really read or do you really go through the syllabus of the UPSC, then what is your answer? क्या आपने अभी तक एक बार भी मेंस का ये प्री के सिलेबस को निकाल के ढंग से देखा है, टॉपिक्स में क्या क्या मेंशन किया गया है? ओके, टेल मी, इज दिस टॉपिक कॉल्ड कैपिटल मार्केट इज द पार्ट ऑफ सिलेबस? बताइए यस और नो, इन मेंस और प्री? नहीं दिया हुआ, मेंस में है, नहीं याद है, आई डोंट नो। ओके, पॉवर्टी प्री में, मेंस में। अच्छा, आप में से कितने लोग जानते हैं इंटरव्यू का सिलेबस भी यूपीएससी ने डिफाइन किया है? नहीं पता, मतलब आपने सिलेबस देखा ही नहीं है। फिर इफ यू गो थ्रू द सिलेबस यू विल फाइंड द सिलेबस फॉर प्री, मेंस एंड इंटरव्यू, ऑल द 3। चेक कीजिएगा, यूपीएससी की वेबसाइट पे जाके मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम है कि जब हमें यही नहीं पता है कि मैं पढ़ना क्या है, तो आप पढ़ेंगे क्या? फिर तो बस आप पढ़ते जाएंगे। आपने एक मैगजीन उठाई, प्रतियोगिता दर्पण टाइप की, क्रॉनिकल टाइप की, उसे पूरी पढ़ डाली, क्या पढ़ा एंड में मुझे पता ही नहीं मैंने पढ़ा क्या। यार उसने कहा था पढ़ने के लिए, इसलिए मैं ले आया। और एक ये भी प्रॉब्लम है ना कि यहाँ पे पढ़ाने बताने वाले इतने लोग मिल जाएंगे ना आपको, जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, जो 5-5 साल 6-6 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं। जब आप चाय की दुकान पर चाय पीने जाएंगे, कोई मिल जाएगा भला मानुस आपको, तूने पढ़ा? नहीं यार मैंने तो नहीं पढ़ा। अरे उसमें से क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर। फिर आप वो पूरी बुक ले आएंगे उठा के, फिर उसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। 4 दिन बाद कहेंगे यार मज़ा नहीं आ रहा, छोड़ इसे यार, फिर कुछ और उठा के लाएंगे।
इसलिए देखिए पॉइंट क्या है कि अगर आपको सिलेबस पता है, क्वेश्चंस का लेवल पता है, तो सोर्सेज सुनिए सबसे कि क्या कहना चाह रहे हैं, देन ट्राई टू मेक अ बेस फ्रॉम वन ऑफ द पर्टिकुलर सोर्स एंड देन बिल्ड योर नीव ऑन दैट। ओके, इट शुड नॉट बी लाइक कि बस पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं, बट क्या पढ़ना है ये तो पता ही नहीं है। आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे राजेंद्र नगर एरिया और मुखर्जी नगर एरिया के अंदर जिनके रूम के अंदर सिर्फ एक बेड होता है और बाकी चारों तरफ किताबें होती हैं, चारों तरफ किताबें मिलेंगी आपको। और उनसे पूछें कितने साल से तैयार कर रहे हैं भाई, बस जी लगे हुए हैं। कब से? तो कुछ तो शर्माते भी है बोलते हुए, उनको लगेगा यार हम तो इतने एक्सपीरियंस हो गए जैसे हम ही एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं। कुछ तो ऐसे भी मिल जाएंगे आपको, कहेगा यार कुछ नहीं बस 7-8 साल से लगे हैं। अच्छा क्या भैया, अगर तू 8 साल से प्रिपेयर कर रहा है यूपीएससी की और तेरी एवरेज लाइफ 64 साल की है, तेरी 1/8 तो चली गई, थोड़ी सी बड़े होने में निकल गई, थोड़ी सी स्कूल में निकल गई, बचा क्या तेरे पास? तू तो ऊपर जाने वाला है कुछ ही टाइम बाद। तो पॉइंट क्या है देखिए कि यहाँ पे इतना पढ़ते हैं लोग, इतना पढ़ते हैं कि उनको खुद नहीं पता होता पढ़ते क्या है। इंडिया ईयर बुक आती है आपके, हर साल सेम होती है, पर हर साल नहीं खरीदेंगे। आपने इंडियन बुक देखी है? इतनी मोटी होती है, उसे तो देख के डर लगता है कि यार इतनी मोटी बुक मैं कैसे पढ़ूंगा, बट फिर भी आप खरीदेंगे। और गारंटेड है 90% लोग जो इंडिया बुक खरीदते हैं वो पढ़ते नहीं है, नहीं पढ़ते होंगे आप। इकोनॉमिक सर्वे आएगा, आप खरीद के जरूर लाएंगे पर उसे पढ़ेंगे नहीं। ऐसा होता है, सबके साथ होता है, ठीक है। इंस्टीट्यूट के मटेरियल मिलेंगे, मार्केट से उठा के लेके आएंगे, चल मैं राउस का लिया हूँ, चल मैं वाजीराम का ले आता हूँ, चल मैं श्रीराम का ले आता हूँ, चल विजन का ले आता हूँ, उसका अच्छा बताया था, उसका सब उठाते रहेंगे, इकट्ठा करते रहेंगे। बाद में रद्दी इकट्ठी हो रही कि यार खर्च तो 5000 किए थे, साला रद्दी में तो 500 भी नहीं मिल रहे। अब भैया पुराना तो OLX पे ऐसे बिकेगा और क्या बिकेगा। इसीलिए देखिए 2 चीज़ों पे ध्यान रखिए, सिलेबस ढंग से पढ़िए, समझिए उसे, और क्वेश्चन पेपर को देख के ये अंदाजा लगाइए पढ़ना क्या है मुझे। और मैं सीरियसली बताऊं, यूपीएससी में ये मत सोचिए कि बहुत बड़े तोपची आते तैयारी करने के लिए। आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे यूपीएससी की तैयारी करते हुए जिनको इंटरव्यू स्टेज तक भी कुछ भी नहीं मालूम होता है। दिस आई एम सिटिंग 2 इंस्टीट्यूट्स इन द इंटरव्यू पैनल्स। तो एक से मैंने पूछा व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली और न्यू दिल्ली। ही वॉज हाईली कंफ्यूज इन दिस क्वेश्चन कि सर इंडिया की कैपिटल दिल्ली है न्यू दिल्ली है। सोचिए जो इंटरव्यू दे रहा है उसे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता। सो यू कैन इमेजिन द लेवल ऑफ पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस यूपीएससी। इट जस्ट दैट पीपल आर नोइंग सर्टेन थिंग्स कि यार ये चीजें हैं, इनको पकड़ना है और पास कर लेना है, और वो पास कर जाते हैं। और जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, वो इस एग्जाम में पीएचडी करके बाहर निकल जाते हैं। वो बनते नहीं है कभी भी, क्योंकि वो ज़्यादा दिमाग लगा देते हैं। इसलिए देखिए कभी ये मत सोचिए कि बहुत ज़्यादा दिमाग लगे, मुझे इस पर रिसर्च करनी है। सिर्फ आपको एग्जामिनेशन में ये ढूंढना है कि मुझे पढ़ना क्या है बस। और उसको सोचने के लिए आप ये माने कम से कम आपको 1-1.5 हफ्ता चाहिए। किस चीज़ के लिए? सिर्फ सिलेबस को अच्छे से देखने के लिए, एनालाइज करने के लिए, और बाद में क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने के लिए। और आपको आई थिंक जो आपको बुकलेट मिलेगी इसकी यहाँ पे विजन के अंदर, उसमें क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है इन लोगों ने कि क्या क्या चीज़ें हैं आपकी, क्या करनी है, कहाँ से सोर्स उठाए इन लोगों ने। दैट विल रियली हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ प्रिपेयरिंग यू बेटर। सो डू गो थ्रू इट। सामने वाले को लगता है यार कोई नहीं बना के देते, टेबल ही तो बनी हुई है। वो टेबल नहीं है सर, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो आपको बहुत हेल्प करेंगी, बट आप उसे नहीं बॉदर करते हैं। क्यों? जिस दिन आप दिल्ली में आते हैं उस दिन आप कोचिंग लेना स्टार्ट कर देते हैं। चल कोचिंग लेते हैं, वाजीराम की फीस भर देते हैं, विजन की फीस भरते हैं, श्रीराम की फीस भर देते हैं, बस कोचिंग लेनी है। बट कोचिंग में अगर आप ये माने अगर आपको सिलेबस नहीं पता तो मैं क्लास में कुछ भी आके XYZ बोल के चले जाऊँ, आप उसे एक्सेप्ट करके घर चले जाएंगे। आप कभी उसका विरोध नहीं करेंगे कह के यार पता नहीं क्या पढ़ा रहा है। बट अगर आपको पता होगा कि लेवल क्या है पेपर का, क्वेश्चंस कैसे आते हैं और क्या लेवल है यूपीएससी का, तो आप सर्टनली कह पाएंगे सर ये क्या पढ़ा रहे हैं तो रिक्वायर्ड ही नहीं है। अब ऐसे क्लास में क्या होता है, आई हैव सीन पीपल हु आर गिविंग 2 to 3 क्लासेस इन जीडीपी टॉपिक। जीडीपी के टॉपिक में 9 घंटे लगा देते हैं सारे मेथड समझाने के अंदर। आई नेवर गिव मोर देन 2 hours टू जीडीपी टॉपिक। क्यों? जीडीपी में आपको केवल बेसिक समझना है। If you see the UPSC pattern, they will never ask you the methods of calculation. They will never ask you these things. They will only ask you that what is the GDP current status. That's all. The basic things जो आपको न्यूज़ पे मिलती है, purchasing power parity क्या होती है, the things why India is the 3rd largest economy at the global level. Then why the GDP concept the people are calling it's a flawed concept. What is the growth and what is development? That is only required. क्योंकि आपको एक concept build करना, that's all. You're not supposed to calculate this. यार हमने अपने मास्टर्स में बहुत GDP कैलकुलेट किया है, वहीं पे कैलकुलेशन होती थी। यहाँ पे यूपीएससी कैलकुलेशन नहीं करवाएगा आपसे, कुछ भी नहीं करवाएगा। दे विल ओनली आस्क यू योर ओपिनियन, द कॉन्सेप्चुअल थिंग एंड ऑल।
इसीलिए इफ यू हैव स्टिल नॉट गॉन थ्रू द सिलेबस एंड द पेपर्स, प्लीज प्रोवाइड सम टाइम so that you will be able to build a kind of a good base to prepare for this exam. और कोशिश कीजिए कि देखिए जो आसपास के जो आपके एरियाज होते हैं ना, चाय वाला, समोसे वाला और जो भी होते हैं, वहाँ पे थोड़ा कम जाइए, या फिर उस टाइम जाइए जब वहाँ पे आपको कम लोग मिलें. ज़्यादा लोग मिलेंगे तो आप वहाँ ज़्यादा रुकेंगे, ज़्यादा टाइम उनको देंगे, वो आपको ज़्यादा ज्ञान देंगे और आप एकदम ज्ञानी बन जाएंगे, कैसे बाबा रामदेव टाइप. ठीक है, और फिर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे. दैट इज़ मच बेटर. बट अगर यहाँ तैयारी करनी है तो अपने मतलब से मतलब रखिए. 1 साल की तैयारी है, ढंग से तैयारी कीजिए. ठीक है, 1 साल ढंग से सफरिंग दे देंगे अपने आप को. देन आफ्टर 1 ईयर द एंटायर 1 इज एग्जामिनेशन प्रोसेस. 2 साल बस, उसके बाद चले जाएंगे. इमेजिन इस चीज, जब भी देखिए इस एग्जाम को तैयारी करें तो एक चीज़ का डर हमेशा माइंड में होना चाहिए. क्या? इफ आई नॉट क्लियर आई हैव टू वेट अगेन 365 days. And imagine that you have to read again that history, geography, polity, economics, everything. That is very, very boring. You all know. So इसीलिए अगर आप वाकई में सीरियस कैंडिडेट हैं और जो इतनी देर तक बैठा है उसके कहीं ना कहीं मन में तो है कि हाँ भैया तैयारी करनी है मुझे, अदरवाइज जो पहले आए थे वो चल दिए. ठीक है, इसीलिए बी सीरियस, बी फोकस एंड एटलीस्ट सी दिस थिंग्स. टॉपिक्स क्या है, सिलेबस क्या है, वो सब आपके सामने यूपीएससी ने प्रोवाइड कर रखा है. इकोनॉमिक्स को प्रिपेयर करने का तरीका, इफ़ यू वांट फ्रॉम योर ओन साइड, तो आपको क्या करना है. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक्स इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर ऑफ योर ओन. सेकेंडली, इफ यू रियली वांट टू प्रिपेयर, just go through the NCERTs of 9, 10th, 11, 12. In your this thing that is being given to you, I think there is a one page where they have mentioned that what kind of sources that you have to follow in the NCERT books, which chapter that you need to follow. See that, read this thing. Then after that, once you have this particular thing, in the syllabus, in the topics, take any book like I.C. Dhingra, Datan Sundaram, or whatever book it is. Start reading only those topics which are being mentioned in the syllabus. Once you're being comfortable, then start thinking on that. Unless until you won't make your opinion on everything, you won't be able to clear this examination, because in mains examination they are asking everything like give your own opinion, justify, critically examine. यही हर क्वेश्चन के एंड में आपको ये पॉइंट मिल जाएगा. इसीलिए हर चीज़ में आपकी आपसे सोच पूछते हैं. जैसे देखिए, करंटली आपने देखा जाट एजिटेशन हुआ इंडिया के अंदर रिजर्वेशन के लिए, उनकी डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया. आने वाले टाइम में ऐसे बहुत सारे एपिसोड्स आपको मिल सकते हैं कि इंडिया में होंगे. तो मान लीजिए ऐसा होता है कि डू यू रियली थिंक इट्स अ राइट वे टू अचीव, और डू यू रियली थिंक इट्स अ राइट वे टू पुट योर थिंग इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट बाय हैविंग सच काइंड ऑफ एजिटेशन. So this is an ethics question. कुछ भी देखिए, सब चीज़ें कनेक्टेड हैं. तो देखिए यहाँ पे क्या है, यू कैन नॉट से इट्स अ फेलियर ऑफ इट्स अ रॉन्ग पार्ट ऑन द पार्ट ऑफ पीपल, इट्स अ फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. यू कैन नॉट ब्लेम द पीपल हियर. You need to blame administration here. The only area where this such thing never happened, like despite that in one area in Haryana that is called Jind, you have a lot of people who belongs to the Jat community, but nothing happened there. Why? The DM and SP was very much alert there. As soon as people came on road, what the SP said, किसी ने कुछ भी आग लगाई, तोड़ फोड़ की, गोली का ऑर्डर दे रखा होगा, गोली मार देंगे आपको. और आप जानते 303 से जब गोली लगती है ना, तो इतना बड़ा होल होता है बॉडी के अंदर, इतना बड़ा, बचते नहीं हैं आप. देखोगे ना, लंबी वाली बंदूक लेके चलते हैं हमारे पुलिस वाले, बचता नहीं है उससे. तो आप ये मानिए सारे लोग वहाँ रोड पे उतरे, बट हुआ कुछ नहीं. और जो आगे डीएम साहब थे, उन्होंने क्या कहा, देखिए जी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस एरिया को संभालना, मैं संभाल लूँगा. अब मेरी ट्रांसफ़र करो या मुझे सस्पेंड करो, इट डजेंट मैटर. आई एम नॉट गोइंग टू फॉलो द डायरेक्शंस गिवन बाय द अपर पीपल. आई एम गोइंग टू डू व्हाट इज बीइंग रिटन इन द लॉ. आई विल डू दैट. एंड नथिंग हैपेंड. सीधा रोहतक 15 साल पीछे ले गए रोहतक को, आधा रोहतक जला दिया, आधा रोहतक. I'm from Rohtak. सो इट इज़ रियलिटी. और अब ये मानिए एक एक दुकान वो जलाई गई है जो नॉन जाट की है, जाट की दुकान को नहीं जलाया गया. सब कुछ प्री प्लान था, सब कुछ नक्शा बना बना के लोगों ने ढूंढा है उनको. इट्स ऑल हैपन इन दिस वे, इट्स ऑल प्री प्लान थिंग. और गवर्नमेंट ने एक्शन क्यों नहीं लिया? In the Western UP, elections are coming. In the Western UP, it has been dominated by the Jat community. Vote bank चला जाएगा. सफर किसने किया? आम आदमी ने. So it's a failure on the part of administration. It's a such kind of politics that is affecting people. So you can give this kind of example. That is actually happening. Okay. So point is, when you see this kind of thing, try to make your own example also. कि reality में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है.
इस तरह के एग्जाम्पल्स दीजिए अपने आंसर्स के अंदर, बट यू हैव टू बी provide these things in such a beautiful manner that you will occupy or you will take least amount of words to provide such kind of thing, because the limitation is there of words. 200 words से 250 words में आपको provide करना है. So you have to perceive things, make your own example, make your own definitions, own thinking, pros and cons, solutions to that. After this everything will be fine. किसी को भी आप ये मानिए, लोग कहते हैं कि 15 घंटे 10 घंटे पढ़ने की जरूरत होती है. पढ़ना है आपको, यू आर सपोज टू स्टडी फॉर 5 or 6 hours. बट आफ्टर दैट द रियल प्रोसेस स्टार्ट थिंकिंग कि उस पर होगा क्या चीज. इफ यू आर सीइंग दैट इन इंडिया द रेप केसेस आर इंक्रीजिंग, you know that we are having laws to cure it, but you need to know what is the main reason behind that. क्या reason है? In India we are adopting anything without having the proper understanding. We are adopting internet, we have adopted internet. कितने लोगों को पहले समझाया गया कि इंटरनेट के प्रॉस एंड कॉन्स क्या होते हैं अडॉप्ट करने से पहले. हमारे इंडिया में 90% पेरेंट्स को नहीं मालूम व्हाट इज पेरेंटल गाइडेंस. उन्होंने नाम तक नहीं सुना होगा इस वर्ड का. क्यों? हार्डली बहुत. बस घर में नेट लगवा दिए, बच्चे देख रहे हैं. यू हैविंग सेपरेट रूम, दे आर सीइंग एवरीथिंग. माइंड वैसे ही होगा, यही करेंगे. और लॉ एंड ऑर्डर तो आप जानते हैं हमारे कितना ज़्यादा स्लो है, कितना ज़्यादा लीनियंट है. सो थिंग इज unless until you're not knowing that what is the root cause and what is the other problems. Like every day you are seeing in Delhi there is a one major accident is happening. कभी Mercedes से कोई एक्सीडेंट करता है, कभी BMW से करता है. क्यों करते हैं भैया? रोड हमने बनाई नहीं है, रूल्स रेगुलेशन वैसे बनाई नहीं है, गाड़ी हमने थमा दी हाथ के अंदर. ऐसा तो होगा ही होगा. और गुड़गांव जैसी जगह को देखिए हमारे इंडिया के अंदर, हर आधे घंटे में एक एक्सीडेंट होता है, मेजर एक्सीडेंट गुड़गांव की रोड्स पे. बट कितने रिपोर्ट होते हैं? 4 रिपोर्ट होते हैं एक दिन में ऑन एन एवरेज. बाकी सारे रोड पे सेटल हो जाते हैं पैसे देके. ऐसे होता है. सो मेक एग्जाम्पल्स, प्रोवाइड दिस थिंग इन योर आंसर्स, एंड देन आफ्टर दैट, एंड मोर ओवर, डू नॉट मग अप द थिंग्स इन यूपीएससी. ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेक योर ओन डेफिनेशंस, एंड देन आफ्टर दैट प्रोवाइड दिस. You'll certainly get good marks. And do not bother about writing in terms of paragraph form or point form. जिस point में लिखना है, जैसे लिखना है वैसे लिखिए मेंस में. Just that you just need to fulfill the demand of question. That is all. That is all being demanded by UPSC. आपको ये नहीं सोचना कि मैं point form में लिखूंगा तो ज़्यादा नंबर आएंगे या पैराग्राफ में ज़्यादा नंबर आएंगे. जैसे लिखना है वैसे लिखिए. आपको सिर्फ क्वेश्चन की डिमांड फुलफिल करनी है. That's all. And try to provide easy language. ये मत सोचिए मुझे डिफिकल्ट वर्ड्स को मगअप करना है और उनको चिपका के आना है अपने आंसर के अंदर. आई वांट टू मेक माय आंसर वेरी मच फ्लारी एंड ब्यूटीफुल. नो, दे ऑल वांट सिंपल लैंग्वेज. ठीक है, तभी तो मैं आपसे कह रहा हूँ जो आस पड़ोस में आपको मिलेंगे ना, वो यही सब बताएंगे. अरे यार ये यूज़ कर, वो यूज़ कर, ऐसा कर, वैसा कर. आप बेकार में भटक जाएंगे. अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाइए. ठीक है, ट्राई नॉलेज सबसे लें. अगर कोई बता रहा है तो सुन लीजिए. ये तो कहेंगे ना छोड़ना यार, क्यों दिमाग खराब कर रहा है, वो चिढ़ जाएगा बेचारा. हाँ यार बस मेरा फ़ोन आ रहा है, बाद में बात करता हूँ. निकल जाइए वहाँ से. अगर आपको लग रहा है बकवास कर रहा है, आपको लग रहा है कुछ काम की बात है तो सुनिए उसे. अगर लगता है कि हाँ मैं कुछ इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ तो करिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए उसकी बात को. लाइक पीपल सेज दैट इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर द ऑप्शनल सब्जेक्ट. लाइक व्हेन आई प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, पीपल जनरली सेज टेक द पॉपुलर ऑप्शनल. सोशियोलॉजी ले लो, पॉलिटिकल साइंस ले लो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लो. मैंने क्यों ले लें भाई? मैंने कहा हमारा बैकग्राउंड तो कॉमर्स और इकोनॉमिक्स का है, हम तो इनमें से एक लेंगे. I took commerce. और आप ये मानिए when it comes to preparing commerce optional, it took only 10 days to prepare. क्योंकि 3 साल कॉलेज में ढंग से पढ़ाई करी थी, इसलिए बाद में पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी. बस सिर्फ क्या किया, सिलेबस देखा, क्वेश्चन पेपर देखा, क्वेश्चंस के लेवल देखे. मैंने कहा ये तो कॉलेज से भी आसान है, इसके लिए क्या तैयारी करनी है, छोड़ो. जब पेपर आएगा 10 दिन पहले उठा के देख लेंगे. बस बुक्स इकट्ठी कर ली थी कि उन 10 दिन में इन बुक्स में से ये चीज़ पढ़नी है. उनको मार्क कर लिया कि ये चीज़ पढ़नी है, सिलेबस का पार्ट है. उनको उठाया, फटाफट पढ़ा, पेपर देने चले गए. एवरी टाइम वी आर स्कोरिंग मोर देन 60-70% मार्क्स इन द ऑप्शनल. सो इट्स नॉट डिफिकल्ट. इसलिए जो भी आपका बैकग्राउंड है उस ऑप्शन को लीजिए. आप खुद सोचिए, अगर आप लोग कहते हैं सोशियोलॉजी लीजिए, पॉलिटिकल साइंस लीजिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लीजिए, और आपका सब्जेक्ट वो है ही नहीं, तो आप उसे ABC से तैयार करेंगे. पर अगर आप अपने सब्जेक्ट को तैयार करेंगे तो वहाँ पर आपको सब कुछ पता है, आपको सिर्फ YZ तैयार करना है वहाँ पर. इट विल नॉट बी डिफिकल्ट, इट विल नॉट टेक लॉट ऑफ टाइम. बट हम ऐसा नहीं करते हैं. नहीं सर सोशियोलॉजी लेंगे, नहीं सर पब्लिक एड लेंगे, और एक तो पॉलिटिकल साइंस नाम का एक ऑप्शनल है सबसे लंबा. भागते हैं. अपना सब्जेक्ट लो यार. कोई डॉक्टर है तो मेडिकल साइंस लो, तो कॉमर्स है तो कॉमर्स लो, इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स लो, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट लो. क्यों दूसरा ऑप्शन लो? इट विल सेव योर टाइम, आई एम टेलिंग यू. एंड मोर ओवर
your popular option will hardly help. I'm not saying it will not help, it will hardly help in your GS, क्योंकि दोनों का पैटर्न ही अलग होता है. क्या करेंगे, एक में ओपिनियन पूछता है, एक में सिंपल क्वेश्चन पूछता है, तो दोनों अलग हैं, तो बहुत हेल्प नहीं करते हैं वो. बट वही है जो सुनने में आता है वो करते हैं. और कभी भी आप ये भी सुनते होंगे, यार इस ऑप्शन से सबसे ज़्यादा लोग बने हैं. अरे भैया, पंजाबी से भी बने हैं, गुजराती लिटरेचर से भी बने हैं, हिंदी से भी बने हैं, कॉमर्स सबसे बने हैं, पर जो पेपर में लिख के आया वही बना है बस, और कोई नहीं बना है. पॉइंट समझ रहे हैं आप? सो यू हैव टू टेक योर ओन डिसीजन, एंड आई एम टेलिंग यू द वन हु टेक्स हिज ओन डिसीजन इज ऑलवेज सक्सेसफुल. When I was working, you know, like when I finished my civil service preparation, I gave interview 2 times. I missed my selection just 1 marks. Once I missed by 1 marks and one by only 4 marks. After that I joined a job in Gurgaon. मैंने 6 महीना काम किया. 6 महीने काम करके मुझे लगा मेरे से नहीं होगा ये. मुझे सबने मना किया, मत करो मत करो मत करो. मैंने कहा मेरे से नहीं होता, मुझे कुछ और करना है. I'll do something different. So take your own decision. जब UPSC की तैयारी करनी थी, then again it was my decision. घर वालों ने सबने मना किया मत करो. मैंने नहीं जी करनी है, लाइफ में रिग्रेट नहीं रहेगा कि हाँ तैयारी नहीं करी. आई डिड इट, दो आई रीच टू द फाइनल लेवल, बट आई वाज नॉट एबल टू क्लियर. दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट थिंग इज यू डिड इट. इसीलिए अगर आपने तैयारी करने की सोची है तो आई एम श्योर आपके घर में किसी ने मना किया होगा, किसी ने हाँ भी किया होगा. जब अपने डिसीजन लेके आए हैं तो अपने हिसाब से ही तैयारी कीजिए. डू नॉट फॉलो द अदर्स एडवाइस, एंड स्पेसिफिकली दोज एडवाइस हु हैव क्लियर्ड द एग्जाम. जो टॉपर है और जो अलग अलग लोग तैयारी करके आए, उनकी बात सुनिए कि उनका एक्सपीरियंस क्या है, बट उनकी स्ट्रेटजी अगर आप अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे, इसने तैयारी कैसी करी, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू अडॉप्ट. इसलिए अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाइए, खुद तैयारी कीजिए. टेक कोचिंग टू मेक अ बेस, बट डू नॉट ट्रीट कोचिंग एज अ थिंग दैट विल मेक यू टू क्लियर द एग्जामिनेशन. दे विल ओनली हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग यू. They will not help you in terms of standing always. You getting my point or not? इसीलिए बेस की तरह यूज कीजिए कोचिंग को कि आपको सब कुछ पता लग जाए, क्योंकि इतना कुछ फैला हुआ है कोचिंग में. बस आपको एसिमुलेट कर देते कि सर इतना पढ़ना है आपको, और इतने में आपका काफ़ी कुछ हो जाएगा. उसके बावजूद भी बाकी जो चीज़ बचती हैं उसमें आपको नोट्स और प्रिंटेड नोट्स क्यों दिए जाते हैं? बिकॉज यू कैन नॉट कवर एवरीथिंग इन क्लास. अगर आप ये मानिए यूपीएससी के एक एक टॉपिक को अगर आप कोचिंग में कवर करने लग जाए ना, सारे, किसी भी कोचिंग की बता रहा हूँ मैं आपको, ये कोर्स आपका 1 साल का नहीं होगा, ये 3 साल की ग्रेजुएशन बन जाएगी आपकी. सीरियसली बता रहा हूँ आपको मैं. केवल आपको बेस बनाते हैं कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, और इन चीज़ों में से इतना इतना एक्सपेक्टेड है, इतना बताते हैं. उसके बाद आपको खुद वर्क करना होता है. आप खुद सोचिए, जो ऑप्शनल कॉमर्स है या इकोनॉमिक्स है, वो हमने 3 साल में ख़त्म किया है, अपने मास्टर्स में 2 साल में ख़त्म किया है, और यहाँ पे आपसे कहते हैं 1 साल में सब कुछ कीजिए. इसका मतलब क्या है? यू कैन नॉट कवर एवरीथिंग इन इंस्टीट्यूट, सो दे विल हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ प्रिपेयरिंग बेटर. ठीक है, बाकी आपको कुछ पूछना है, पूछिए. इकोनॉमिक्स ऑप्शन के बारे में पूछना है, इकोनॉमिक्स आपको सब्जेक्ट के अपने जीएस के बारे में पूछना है, जो भी पूछना है पूछ सकते हैं. सब माइक्रो बिल्कुल नहीं पढ़ना है, आईएएस जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है. उसमें आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली जो सेकंड बुक है उसमें भी केवल 4 चैप्टर पढ़ने हैं. फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन एंड फॉरेन एक्सचेंज, बाकी सारे छोड़ दीजिए. हाँ, वो फॉरेन एक्सचेंज में आ जाएगा आपका, सिर्फ ये पढ़ना है. माइक्रो टच भी नहीं करनी है आपको, नॉट सपोज टू टच माइक्रो एट ऑल. सर संजीव वर्मा सर की बुक आपको जो मिलेगी मार्केट में वो अपडेट नहीं मिलेगी. अब लास्ट ईयर की है, ले लीजिए, काफ़ी अच्छी बुक है, मेंस के लिए बहुत अच्छी है. नहीं, पर वो बुक आपको समझ भी तभी आएगी जब आपके इकोनॉमिक्स का बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है. नहीं, सारी चीज़ कवर नहीं करती है सर. बाकी चीज़ वही है, जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक्स हैं उन लोग किसी और बुक से देखिए, इफ़ यू कैन कवर. जैसे आप आईसी धींगरा की बुक ले सकते हैं, दत्तन सुंदरम की बुक ले सकते हैं, ये सब कॉलेज लेवल. पर उनमें से आपको केवल वही टॉपिक उठाने हैं ना, सारे नहीं उठाने हैं. केवल जो जो लैंड रिफॉर्म का एक टॉपिक है जो आपको संजीव वर्मा में नहीं मिलेगा, वो लैंड रिफॉर्म वहाँ से उठा लीजिए. उसमें लैंड रिफॉर्म दत्तन सुंदरम के ऊपर 6 या 7 पेज है, मोर देन इनफ है आपके. देखिए, इनके लिए सिंपलेस्ट सोर्स है आपका न्यूज़पेपर. देखिए, कभी भी यूपीएससी आपसे कमेटी की रिपोर्ट पूछेगा ही नहीं. एग्जैक्टली. जो आपको न्यूज़पेपर में आर्टिकल मिलता है ना किसी कमेटी के तुरंत बाद जो आता है,
उसमें उन आर्टिकल्स में आपको उनके प्रॉस एंड कॉन्स लोग अपने हिसाब से बताते हैं। उनमें जो जो पॉइंट आपको लगे कि हाँ दिस इज़ द गुड वन, जस्ट जॉट इट डाउन। आर्टिकल काट के मत रखिए उसको पूरा का पूरा, सिर्फ उन पॉइंट्स को निकाल लीजिए और अपने उसके अंदर लिख लीजिए, हो जाएंगे आपके नोट्स प्रिपेयर। क्योंकि कोई भी बुक आपको रीसेंट कमिटीज़ की रिपोर्ट को नहीं लिख के देगी, ना ही प्रॉस एंड कॉन्स देगी, बट वही चीज़ आपको न्यूज़पेपर में मिल जाएगी। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, ठीक है, लास्ट ईयर आपकी इंडियन फाइनेंशियल कोड आया था, उसमें क्या है उन्होंने कमेटी बताई, उसमें आरबीआई के गवर्नर को वीटो पावर नहीं दी गई। तो उसमें क्या है, जब आप उसके आर्टिकल्स को पढ़ेंगे तो उसमें पता लगेगा कि लोग बताना चाहते हैं कि प्रॉस क्या है, इसके कॉन्स क्या है। उसके बाद दोनों जब आपको पता लग जाएंगे तो उसका सॉल्यूशंस आप अपने आप खुद जनरेट कर पाएंगे कि इसके नेगेटिव्स के सॉल्यूशंस क्या है। इसीलिए इफ you want to have the update regarding all the programs and thing, try to make an habit to follow PIB website every day। जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट है, उसको एक बार देख लीजिए। उसमें कुछ मिनिस्ट्री, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड, कुछ मिनिस्ट्रीज हैं, उनके कॉलम्स को चेक करते रहिए कि इनमें अपडेट्स क्या हैं आज। उनमें देखिए अगर कोई नई स्कीम आई है, कोई नया कमेटी आई है, कोई नया बिल आया है, उनको फॉलो कर लीजिए। जैसे अगर आप बिल्स देखने हैं आपको लोकसभा राज्यसभा के, तो राज्यसभा लोकसभा की वेबसाइट पे जाके चेक कर लीजिए। जैसे अभी आपका सेशन खत्म होगा, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा का, वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट पे देखिए कि कौन कौन से बिल इंट्रोड्यूस हुए हैं, उनकी वहाँ पे पूरी की पूरी लिस्ट होगी। उसके बाद गूगल पे सर्च कीजिए, देखिए बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे। अगर आपको खुद ही तैयार करना है, आर्टिकल्स को देखिए, 2-3 आर्टिकल्स जो आपके पहले उनको पढ़ लीजिए, उसमें आपको प्रॉस एंड कॉन्स सबके मिल जाएंगे। तो 2 तरीके हैं इन चीज़ों, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हमसे चीज़ें मिस हो जाती हैं। हाँ, तो उसके लिए यही मैं आपको बता रहा हूँ कि डेली की एक हैबिट बनाइए, इस पीआईबी की वेबसाइट को देखना, 10 मिनट देखना है। कोई साइड में कॉलम होता है, सारे मिनिस्ट्रीज़ के डेली अपडेट्स उस पर आते हैं, डेली। इनफैक्ट आपका यूपीएससी का जो मेंस का रिजल्ट आता है ना, वो पीआईबी की वेबसाइट पे यूपीएससी की वेबसाइट से पहले आता है, ये भी ध्यान रखिए। यूपीएससी की वेबसाइट पे आएगा 10:10 पे, उस पर आएगा 10 बजे आ जाएगा, 10 मिनट पहले आ जाता है, ठीक है। सो दे आर वेरी फास्ट इन टर्म्स ऑफ अपडेटिंग एवरीथिंग। तो इनकी वेबसाइट को देखने का एक बना लीजिए डेली की हैबिट। और जो बाकी बिल्स वगैरह है वो राज्यसभा लोकसभा की वेबसाइट पे देख लीजिए, वो सब मिल जाएगा। एनसीईआरटी बुक फॉलो करनी है, जब आपका थोड़ा बेस बन जाएगा, फिर कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक ले लीजिए यूनिवर्सिटी लेवल की, उनमें से उन टॉपिक्स को देख लीजिए, फिर अपने न्यूज़पेपर को फॉलो करते रहिए। हाँ, उन टॉपिक्स जो उनको चैप्टर्स हैं उनको देख लीजिए, फिर उसके बाद वो न्यूज़पेपर डेली फॉलो करते रहिए। सर जो मेरा मटेरियल है, मेरे मटेरियल में आपको यही है कि उसमें मेरे अपडेशन, जैसे मान लीजिए अगर मैं आज बैंकिंग की क्लास ले रहा हूँ तो कल तक का अपडेशन उसमें मिल जाएगा आपको, क्योंकि जो हैंडआउट मैं प्रोवाइड करता हूँ उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि आपके एफर्ट्स मिनिमाइज हो जाएं, कि आपको कम से कम देखना पड़े, जिससे कि मैं उसमें मेहनत करके आपको ऑलरेडी, क्योंकि कोचिंग का आपका सेकंड बेनिफिट होता है, देयर एफर्ट हैज़ टू बी मिनिमाइज्ड एंड दैट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग माई सब्जेक्ट, कि अगर मैं आपको नोट्स ले रहा हूँ तो उसमें आपको एक्यूरेट चीज़ें मिलें, बिना मिस्टेक के कंप्लीट मिले, और आपके एफर्ट्स कम से कम हो जाए, वो मेरे एफर्ट्स रहते हैं, ठीक है। बाकी कुछ और पूछना है सर? वो देखिए वो काम हो जाता है कि जैसे आपको तो सब चीज़ें प्रिपेयर करनी है, मुझे तो अपना सब्जेक्ट पढ़ाना है। मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, एक कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन में केवल जुडिशरी के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो उसमें है कि जो मैंने नोट्स बनाए हैं, तो मुझे पता है मेरा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, तो मैं उसमें सारी बुक्स देखूंगा, उनमें से सब कुछ निकालूंगा जो जो मुझे ठीक लगेगा। पर आपको तो सारी चीज़ तैयार करनी है, आप थोड़ी ढूंढेंगे उन 100 पेजेस को, क्योंकि आपको और भी चीज़ें तैयारी करनी है। क्या सर्वे तो आपको देखना है, तो रुकिए मैं अपना ईमेल आईडी देता हूँ, आप मुझे ईमेल कीजिएगा, मैं अपना गूगल ड्राइव शेयर कर दूंगा, लीजिए। सर्वे की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईमेल आईडी लिखिए मेरा PRATIK2001 मुझे मेल लिखिएगा और मेल में लिख दीजिएगा कि आई अटेंडेड द वर्कशॉप, आई नीड द गूगल ड्राइव, मैं आपको एक्सेस दे दूंगा। आपको लास्ट इकोनॉमिक सर्वे की, सार की इकोनॉमिक सर्वे की JEE2001 @gmail.com आप मेल कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, अपना ड्राइव शेयर कर दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा उसमें से इकोनॉमिक सर्वे, दोनों साल के मिल जाएंगे। वो पर एक इंडिया ईयर बुक वो मैं नहीं पढ़ा, क्योंकि मैंने खुद नहीं पढ़ी कभी अपने तैयारी के टाइम में, क्योंकि देखिए इंडिया ईयर बुक में वो चीज़ें मिलती हैं जो आपकी हिस्ट्री वगैरह में पहले लिखी हुई हैं, उसमें क्या है वही तो लिखी हुई है। जब मैंने बाकी चीज़ें ढंग से पढ़ी तो मुझे ईयर बुक पढ़ने की जरूरत क्या है? आप ईयर बुक में लास्ट से कह रहे क्वेश्चन आया था कि उससे जो हमारा अशोक स्तंभ है वो
तो सर वो तो हमें ऑलरेडी मिल रही हैं। इंडिया ईयर बुक निकलती है आपकी 15 की निकली है, अब 16 में पूरे साल में आपके क्या अपडेट होंगे उसमें, वो तो अगले साल अपडेट होगा अब उसमें। जब मैंने 15 की पढ़ाई ऑलरेडी ढंग से की है तो मुझे ईयर बुक देखने की जरूरत ही क्या है। यहाँ भी ईयर बुक का सेशन होता है, दैट इज वेरी वंडरफुल, आई नो, वो सब कुछ कवर करवाएंगे आपका, बट वो जो कवर होगा आपका वो उस जिस दिन वो डेट पब्लिश हुई है उस दिन तक का कवर हो जाएगा, उसके आगे तो सर आपको खुद ही करना है। उसके लिए तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही पड़ेगा। इसीलिए अगर उससे पहले भी आपने चीजें ढंग से फॉलो की हैं तो ईयर बुक में जो आपको पढ़ाया जाएगा, जो बताया जाएगा पूरा, तो मैंने पढ़ा हुआ है। अब कह रहे अशोक स्तंभ जो हमारा है वो कहाँ से लिया है, मंडोकनिपनिषद ऐसी कुछ है। अब मैंने तो हिस्ट्री में पढ़ा है कि वो कहाँ से आया, तो मुझे तो कुछ में नया नहीं लग रहा कुछ। तो मैं जब बुक खोलता हूँ मैं कहता हूँ इसमें तो पॉपुलेशन के फिगर लिखे हुए हैं, इसमें जनगण मन लिखा हुआ है, इसमें वंदे मातरम लिखा हुआ है, यार ये क्या करूँ मैं, छोड़ दो इसे, मैं बंद करके बंद कर देता हूँ। सर वही है ना, ज्ञान तो सब देते हैं। नहीं, उनका सेक्शन मैंने देखा है, इट्स गुड, इट्स गुड, बहुत ईजीएस्ट वे में समझाते हैं वो। तो देखिए पॉइंट वो है ना कि बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, बट आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है कि मुझे क्या करना है। अब उस पर आप पढ़ेंगे, इतनी देर में उसका लेक्चर सुनेंगे या वो करेंगे, अगर इतनी देर में आप एक बार खुद ही गो थ्रू हो जाएंगे तो आप खुद ही खत्म कर लेंगे उसे। पॉइंट समझ रहे हैं आप? बिकॉज टाइम इज अ थिंग विच इज वेरी लिमिटेड इन दिस एग्जामिनेशन। सो बी वाइज, बी फोकस्ड एंड बी लिटिल बिट ऑफ मैनिपुलेटिव ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन। वो बनना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम बहुत वास्ट है। ऐसे नहीं बोल देते मदर्स ऑफ ऑल एग्जाम, क्यों? क्योंकि मदर है, सब कुछ पढ़वाता है आपसे। ठीक है, हाँ जी। मैम बेटर ये है कि 9-10 के एनसीईआरटी से स्टार्ट कर लीजिए आप। जो मैं ड्राइव शेयर करूंगा उसमें आपको एक और मिलेगा जिसमें लिखा होगा इकोनॉमिक्स का आपका कौन कौन सी आपको वो देखनी है, क्या कहते हैं एनसीईआरटी में कौन कौन से बुक्स का चैप्टर नंबर वो भी, और उसमें बुक्स के नाम भी वो भी लिखा होगा, कोई भी एक बार देख लीजिएगा, पता लग जाएगा आपको। ठीक है, बाकी अब ये मानिए कि व्हेन इट कम्स टू कवरिंग द थिंग्स इन क्लास, तो जैसे लास्ट ईयर का मैं बताऊं तो अराउंड 150 मार्क्स में से केवल एक क्वेश्चन था जो नोट से मेरे बाहर आया था और जो क्लास डिस्कशन से, एवरीथिंग आई कवर्ड। और क्लास में देखिए बहुत बार स्टूडेंट बोलते हैं सर ये कवर नहीं कराया, वो कवर नहीं करवाया। मैं कहता हूँ भैया जो तुम्हें एक्स्ट्रा करना है वो कर लो, पर मुझे अपने हिसाब से करवाने दो, क्योंकि आई एम दी वन हु नोज कि मुझे अपने सब्जेक्ट में क्या करना है। अगर आपको इतनी नॉलेज खुद ही होती तो सर आप कोचिंग नहीं लेते फिर। पॉइंट समझ रहे हैं आप? तो इसीलिए इफ़ यू थिंक समथिंग एक्स्ट्रा यू हैव टू रीड, नो प्रॉब्लम, बट व्हाट आई एम डूइंग इन क्लास I can say that you will be able to cover 70 to 80% of that. Nobody can take guarantee of 100%. अगर कोई इंस्टीट्यूट आपसे कहता है ना 100% कवर करवा देंगे, वो नहीं करवा सकता, कोई भी नहीं करवा सकता आपको 100% की तैयारी तो यूपीएससी की। इनफैक्ट कई बार तो क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, हम पढ़ते हैं यार ये कहाँ से आ गया, ये तो हमने भी नहीं पढ़ा था। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे सरप्राइजिंग होते हैं कि जो आपको नहीं मालूम होंगे, दैट इज फॉर एवरीवन, वो सबके साथ होगा। इसीलिए यू जस्ट नीड टू बॉदर अबाउट 80% ऑफ द पेपर, कि मुझे 80% अच्छा लिखना है और बहुत अच्छा लिखना है, सो दैट इन 80% आई विल बी एबल टू स्कोर 40%। अगर आपके 40% मार्क्स आ रहे हैं तो आपकी इंटरव्यू कॉल तो सर 33% पे आती है आजकल मेंस में जनरल कैटेगरी की। इट्स नॉट लाइक दैट यू हैव टू स्कोर 75% और 80%, यू जस्ट नीड टू स्कोर 35% टू गेट अ कॉल फॉर इंटरव्यू, और 5-7% ऊपर आ जाएंगे फिर तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, क्या प्रॉब्लम है। रियलिटी है 1750 में से आई थिंक 650-700 तो हो जाती है अभी कट ऑफ इंटरव्यू के लिए, और क्या चाहिए आपको। यानी कि यूपीएससी वांट्स दोज पीपल हु आर राइटिंग क्वालिटेटिव, हु आर एक्चुअली थिंकिंग, दे डू नॉट वांट दोज पीपल हु आर जस्ट राइटिंग कंटेंट। कंटेंट पूछता ही नहीं आपसे, कोई भी पेपर देख लिया लास्ट 2-3 साल का, कोई भी बिल, कोई भी कमेटी की रिकमेंडेशन नहीं पूछ रखी है आपसे, देर ओनली आस्किंग यू व्हाट इज योर ओपिनियन, जस्टिफाई, यही चीज़ें पूछते हैं आपसे। तो उसमें क्या है कि आपको उनकी रिकमेंडेशन पढ़ के खुद ओपिनियन बनानी है कि कहना क्या चाह रहा है, इससे सोसाइटी पे क्या पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, इस तैयारी कीजिए, फोकस तरीके से चीज़ों को ढंग से देखिए, परसीव कीजिए, आंखें बंद मत कर रखिए, खोल के रखिए, अपने आप चीज़ें धीरे धीरे समझ में आएंगी, अपने आप बेस बनता चला जाएगा। एंड डू टेस्ट सीरीज, वाई? बिकॉज दे विल हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ राइटिंग गुड आंसर्स। अदरवाइज मेंस में क्या होगा, आप आंसर जरूर लिख के आएंगे, बट जब नंबर आएंगे तो वो अच्छे नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि आपको ने वो टू दी पॉइंट चीज़ें लिखी नहीं है। तो आप क्या कहेंगे, यार जिसने पेपर चेक किया होगा ना वो बीवी से पिट के आया हुआ, ढंग से नहीं चेक किया उसने। भैया वो बीवी से पिट के नहीं आया, आपने ढंग से तैयारी नहीं करी, आपने ढंग से लिख के नहीं आए हैं।
क्योंकि हमें नहीं पता, अब जो सामने वाला मेरे से पूछ रहा है कि वाई, और मैं लिख रहा हूँ दिस, मान लीजिए आपसे लिख रहा है पावर्टी क्यों ठीक नहीं है लाइन, और मैं आपको दिख रहा हूँ एज पर दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सी रंगराजन कमेटी डिफाइंड पावर्टी दीज आर द थिंग्स दैट इज बीइंग फॉलोड दिस दिस दिस, 200 वर्ड खत्म हो गए, अब क्या लिखूँ? जब भैया अपने क्वेश्चन की डिमांड ही पूरी नहीं करी तो मार्क्स क्यों देगा सामने वाला आपको? सो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन स्टार्ट टारगेटिंग द क्वेश्चन, डू नॉट प्राइड, वो कहते हैं ना इंट्रोडक्शन, भूमिका मत बांधिए उसकी, वो जब सर किसी को प्रपोज करना होता है जब बांधी जाती है, ठीक है, अदरवाइज तो टू दी पॉइंट काम होता है। पॉइंट समझ रहे हैं आप? सो बी स्पेसिफिक इन योर यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन आंसर। एनी अदर क्वेश्चन यू वांट टू आस्क? नो, सो यू कैन मेल मी, आई विल शेयर द गूगल ड्राइव विद यू। Your option, you had economics or an option? Sir, I had commerce, but if you need economics guidance, I'll provide you. Don't worry. You are having economics background? No, I don't have. Just one question. I mean, is there a lot of mathematics in No, economics option? no, not at all. In commerce, there is a lot of practical, but in economics optional, hardly practical you will get. They're only asking theories and all, nothing else. Because most high-level economics has lot of mathematics. सर इकोनॉमेट्रिक्स तो पूछते ही नहीं है आपसे, तो मैथमेटिक्स आएगी कहाँ से? नहीं, in optional I'm asking. हाँ, ऑप्शनल की तो बता रहा हूँ, इकोनॉमेट्रिक्स एक चीज़ होती है आपकी, वो नहीं पूछते हैं आपसे। सेकंड पेपर आपका पूरा इंडियन इकोनॉमी है ऑप्शनल में, वो तो जब आप जीएससी क्लास कर लेंगे ना 90% तो जब भी लिख देंगे क्लास करने के बाद, और जो पहला पेपर है उसके लिए आपको मैक्रो अलग से पढ़नी पड़ेगी, सिर्फ वो कंप्लीट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर प्रॉब्लम क्या है, जितनी भी आपकी बुक्स है इकोनॉमिक्स वो सारी फॉरेन ऑथर्स की है, इंडियन ऑथर्स को इकोनॉमिक्स लिखनी नहीं आती है, आई थिंक ज़्यादा अच्छी, कुछ ही है हमारे यहाँ पे तो अच्छी इकोनॉमिक्स लिखते हैं, बाकी साल्वाटोर, कुछ जियानेस और ये सब के सब फॉरनर है, और बुक्स बहुत अच्छी लिखी हैं उन लोगों ने, विद एग्जाम्पल्स, विद ग्राफ्स एंड ऑल, वेरी गुड बुक्स। ओके, एनी अदर क्वेश्चन यू वांट टू आस्क? नो, चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।